بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصمت ایک بھولی بالی لڑکی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ ایک بینک میں کام کرتی تھی۔ عصمت نے BSc کیا تھا۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ نہ بن سکی تو بینکنگ کی طرف آ گئی۔ یوں تو وہ بے حد دیانتدار محنتی لڑکی تھی، لیکن پریشان رہتی تھی۔ اس نے BSc پاس کر لی تھی، لیکن اس کی انگریزی بہت کمزور تھی۔ ملازمت میں اسے بے حد دقت پیش آنے لگی۔ یہ آج سے تقریباً 50 برس قبل کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنے کولیگز کا خیال رکھتے تھے اور مدد بھی کیا کرتے تھے۔ عصمت کو جب دقت پیش آنے لگی تو وہ میرے پاس خطوط وغیرہ لے کر آ جاتی۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آتی مجھ سے پوچھ لیتی۔ ان خطوط کا جواب چونکہ انگریزی میں خاص ضابطے اور طریقے سے لکھنا ہوتا تھا، لہٰذا میں اسے اکثر خود ہی جواب لکھ کر دیا کرتی تھی اور رہنمائی بھی کر دیتی تھی، جس پر وہ بے حد مشکور ہوتی۔ کہتی تھی، ماریا تمہاری انگریزی کتنی اچھی ہے، ایک میں ہوں کہ 4 سطریں بھی انگلش میں درست نہیں لکھ سکتی۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری سیٹ کے ساتھ میری سیٹ ہے، ورنہ جانے کیا ہوتا، ضرور مجھے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا حامی و ناصر ہے۔ میں کیا چیز ہوں؟ وہ خود اپنے مجبور اور حاجت مند بندوں کی مدد ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتی تو میری جگہ کوئی اور اللہ کا نیک بندہ مددگار ہو جاتا۔ 1 سال گزرا کہ میرا تبادلہ ہو گیا اور میں دوسرے سیکشن میں چلی گئی۔ ہمارا سیکشن اب نچلی منزل میں تھا، جبکہ عصمت اوپر والی منزل میں بیٹھتی تھی۔ میرے تبادلے کا سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ کہنے لگی، ماریا سچ کہتی ہوں تم بن میری یہ نوکری نہیں کر سکتی، مجھے بہت مشکل ہوگی۔ اب مجھے کون بتائے گا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، میری جگہ جو آئے گا اس سے مدد لے لینا۔ کہنے لگی، میری دوست، اگر کوئی ایسا آ گیا جس نے مدد کرنے کے بجائے دوسروں کو میری اس کمزوری کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ عصمت میں ایسی صفات تھی کہ ہر کوئی شخص اس کی تعریف کرتا اور ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ وہ بے حد محتاط لڑکی تھی، کسی سے فری ہو کر بات کرتی تھی اور نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے وغیرہ پیتی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو اپنے کولیگز کے ساتھ چائے پینا بھی برا خیال کیا جاتا تھا۔ عصمت نے اپنے اچھے طور طریقوں سے دفتر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی تھی۔ کسی فرد کی جرأت نہ ہوتی اس سے بلا ضرورت بات کرے۔ وہ سر ڈھانپتے کرسی پر بیٹھتی، اپنا کام سر انجام دیتی رہتی اور چھٹی کے وقت دفتر سے نکل کر گھر کی راہ لے لیتی۔ اسی کی انہی صفات کے باعث تمام کولیگ مرد اس کا احترام کرتے تھے اور جب وہ آتی اس کے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے تھے۔ عصمت کو امید تھی کہ میری جگہ کوئی خاتون آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ ایک مرد کو میری سیٹ پر تعیناتی ملی۔ یہ حضرت خاصے خوبصورت تھے، عمر میں عصمت سے 7 برس بڑے ہوں گے، بہت سمارٹ لیکن مہذب اور خوش لباس، ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے، مجھ سے سینئر تھے اور اچھے خاندان سے تعلق تھا۔ ان کا نام قیوم تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ قیوم صاحب عصمت کے برابر والی نشست پر آ گئے ہیں تو میں نے اس کو مبارکباد دی اور عصمت سے کہا کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، قیوم صاحب نہایت قابل اور دفتری امور میں طاق آفیسر ہیں، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ تمہارا تعارف کرا دیتی ہوں اور یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ تمہیں تھوڑا سا انگریزی زبان میں خط و کتابت کرنے کا مسئلہ ہے، وہ تمہاری مدد اس طرح کر دیا کریں گے جیسے کہ میں کرتی تھی۔ اگلے دن جب قیوم صاحب اپنی سیٹ پر آ گئے تو میں عصمت کے پاس پہنچی اور اس کا تعارف قیوم سے کروایا۔ ان سے استدعا کی کہ وہ عصمت کی رہنمائی اور مدد کر دیا کریں۔ انہوں نے حامی بھر لی اور بعد میں اپنے اس وعدے کو اچھی طرح نبھایا۔ جب عصمت کو کسی دفتری لیٹر کا جواب لکھنا ہوتا یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، وہ قیوم صاحب سے پوچھ لیتی اور وہ اس مشکل کو آسان کر دیتے۔ تمام حساب کتاب اور اکاؤنٹنٹ سے متعلق امور سمجھا دیتے تھے۔ اس طرح عصمت نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا جو وہ پہلے نہیں سیکھ پائی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ زیادہ اعتماد سے اپنے فرائض سر انجام دینے لگی۔ یہ بات تو سیاح راز میں ہی رہی کہ دونوں کسی سلسلے میں روز ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ کبھی عصمت قیوم صاحب کی سیٹ کی جانب چلی جاتی اور ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر کاغذات ان کے آگے رکھ دیتی۔ کبھی وہ خود اٹھ کر آ جاتے اور ان کے سامنے والی کرسی پر برجمان ہو کر ان سے کچھ لکھوانے لگتی۔ ایسا تو میں تقریباً روز کرتی تھی، لیکن میں ایک خاتون تھی، لہٰذا ہمارے ارد گرد کام کرنے والے مرد حضرات کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ کوئی سوچتا اس بات کو۔
मगर कयूम साहब की तवज्जो को लोगों ने इनकी अस्मत में गैर मामूली दिलचस्पी समझकर इस बात को गलत रंग देना शुरू कर दिया। अब रोज़ ही अजीब अजीब बातें होने लगी, यहाँ तक कि सारे डिपार्टमेंट में चुपके चुपके अस्मत और कयूम साहब के अफेयर की दास्तां बयां की जाने लगी। जो सुनता बेख्तियार इसकी ज़ुबान पे ये फिक्र आ जाता, अस्मत और किसी से अफेयर चलाए वो ऐसी तो नहीं है, जबकि अक्सर को ये भी इल्म था कि कयूम साहब न सिर्फ शादीशुदा बल्कि बाल बच्चेदार आदमी है। वो कोई आवारा मजाज या दिल फेंक नहीं है, और ऐसे नौजवान नहीं वो, बल्कि वो एक संजीदा और जिम्मेदार शख्स थे। फिर भी गंदी जहनीत के लोग अपने मशगले से बाज न रह सके। ये सभी के लिए हैरत की बात थी। तमाम अमले में इनकी बातें होने लगी। अगर खबर ना थी तो अस्मत को ना थी कि लोग इनके बारे में कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। जब ये अफवाह मुझ तक पहुंची तो एक दिन मैं अस्मत के पास कर उससे बातों बातों में बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो बेखबर थी। इसके दिल में किसी किस्म का ख्याल कयूम साहब के बारे में नहीं था। जो वो चौंक जाती, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से इनका जिक्र मेरे रूबरू करने लगी। कहा कि तुमने अच्छा किया जो मेरी इनसे सिफारिश कर दी, वरना मैं तो बहुत परेशान थी कि क्या करूँगी, और इनसे अकाउंट्स वगैरह के बारे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने कहा, अस्मत अब तुम किसी से कोई ट्यूशन ले लो और अपनी इंग्लिश को इस हद तक इम्प्रूव कर लो कि इस परेशानी से मुस्तकिल निजात मिल जाए। तुमने तरक्की करनी है तो इम्तिहान भी पास करना होगा, और तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ सभी कुछ अंग्रेज़ी में होता है। क्या तमाम उम्र क्लर्की वाली सीट पर बैठी रहोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम इम्तिहान पास करो और ऑफिसर वाली सीट की अहल हो जाओ, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब तुम अपनी इंग्लिश को खातिर ख्वाह हद तक इम्प्रूव ना कर लो। कहने लगी, मारिया तुम सही कहती हो, मगर तुम जानती हो मुझे ये अदना दर्जे की सीट भी कितनी मुश्किल से मिली है। अगर मेरे उस्ताद की सिफारिश ना होती तो मुझे हरगिज़ ना मिलती। वो मेरे हालात जानते थे तभी सिफारिश करती, क्योंकि मैं इनकी नज़रों में एक अच्छी स्टूडेंट थी। वो तो सही है, तुम वाकई कौलो फेल, किरदार और गुफ्तार हर लिहाज से आला दर्जे की लड़की हो, मगर सारी मुसीबत इसी बात ने खड़ी करती है कि तुम्हारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है और तुम इसे इम्प्रूव करने की अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रही। तुम कोई अच्छा ट्विटर क्यों नहीं रख लेती? मेरे हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। मारिया तुम्हें क्या पता हमारे घर के क्या मसाइल हैं। जब से वालिद साहब बीमार पड़े हैं इनका कारोबार ठप हो गया है। मेरी 7 बहनें हैं और भाई कोई नहीं है। सारी बहनें पढ़ रही हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये नौकरी भी अल्लाह ताला ने हमारे हाल पर तरस खा कर दिलवा दी। अब घरों में फाकों तक की नौबत आ गई थी। हमारा ज़ाती घर बिक गया और हम किराए के ऐसे घर में आ गए जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। एक में अब्बा लेटे रहते हैं और दूसरे में हम सारी बहनें और अम्मी होती हैं। मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि आधे महीने का राशन पूरा नहीं होता, ऊपर से मकान का किराया भी देना पड़ता है। बेशक मेरी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, किताबों कॉपियों का खर्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म भी उजले होने चाहिए। ऐसे में क्यों कर ट्यूटर रखूं और इनकी भी फीस भरूं? कोई मुफ्त में पढ़ाने तो नहीं आएगा। दफ्तर से जाकर खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और 2 बहनें भी ट्यूशन पढ़ाती हैं, तब भी गुजारा मुमकिन नहीं होता। इसने पहली बार दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। इतनी अच्छी और साबिर लड़की की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, अस्मत ज़माना इतना अच्छा नहीं जितना हम समझते हैं। तुम्हें खबर है कि सारे दफातर में तुम्हारे और कयूम साहब के बारे में कैसी गलत खबरें उड़ रही हैं। इसी सबब वो अपना तबादला करवाने के सोच रहे हैं। इसके बाद तुम बताओ क्या करोगी? इसका मुंह मेरी बात सुनकर खुला का खुला रह गया। कहने लगी, जिस इल्ज़ाम से बचने के लिए मैं इतनी मोहतात रहती हूँ कि सिवाय कयूम साहब के किसी और से मैं बात नहीं करती, लोग फिर भी ऐसी बातें करने लगे। हालांकि कयूम साहब से मैं सिर्फ मदद लेती हूँ और ये मेरी मजबूरी है। मारिया तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ, मगर दूसरे तो इस मजबूरी को नहीं जानते, तो बेहतर है तुम इनसे मदद ना लिया करो। या फिर क्या करूँ? तुम इनसे शादी कर लो। शादी? ये तुम क्या कह रही हो? वो तो पहले से शादीशुदा है, और वो भला क्यों करेंगे मुझसे शादी? बीवी बच्चों के होते हुए वो कर लेंगे तुमसे शादी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की है। तुम्हारे हालात का भी इन्हें इल्म है, और ज़माना जो अफवाहें उड़ा रहा है इस बारे में बाखूबी आगाही है। वो तुम्हें सहारा देना चाहते हैं, बशर्ते ये कि तुम इस सहारे को कबूल कर लो। ऐसा नहीं हो सकता मारिया, इसने कहा। मैं एक शादीशुदा मर्द से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी औरत की सौतन नहीं बन सकती। मैं इस औरत का सुकून क्यों बर्बाद करूं? भला इनकी बीवी ने क्या बिगाड़ा है मेरा?
तुम अच्छी तरह सोच लो, वो तो इस सीट से अपना तबादला करवा के किसी और ब्रांच में चले जाएंगे, क्योंकि ये अफवाहें इनके साख को मुतासिर कर सकती हैं। वो गुमसुम बैठी रह गई और मैं सोचों के समंदर में धक्का देकर मैं इसे आ गई। अगले दिन असमत ऑफिस न आई। वो यकीनन बहुत अपसेट होगी। तभी कयूम साहब ने मुझसे इसका नंबर मांगा और उसको फ़ोन कर दिया। वो परेशान थी और रो रही थी। इन्होंने नहायत दानिशमंदी से तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरे होते हुए तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और ना मैं आँच आने दूंगा। तुम ऑफिस आ जाओ, तुम्हें किस बात का डर है? मैं हूँ तुम्हारी पुश्त पर। खुद को इस कदर तन्हा और बेबस हरगिज़ मत समझो। इनकी तसल्ली काम कर गई और असमत ने ऑफिस आने की जुर्रत कर ली। कयूम साहब खुद इसकी सीट पर गए और रूबरू बैठकर बड़ी देर तक समझाते रहे, क्या मैं तुम्हें खुद ट्यूशन पढ़ाऊंगा, अपने वालिदैन से इजाज़त ले लो, रोज़ शाम को आकर पढ़ाऊंगा। इस तरह चंद दिनों में मैंने अपना सारा दफ्तर का काम इनकी ट्यूशन की वजह से खुद करने लगी। असमत ने वालिदैन को मुश्किल बताई। इन्होंने इजाज़त दे दी कि कयूम साहब बेशक घर आकर अंग्रेज़ी पढ़ा दिया करें। अब वो रोज़ाना 7 बजे से शाम 8 बजे तक असमत को पढ़ाने लगे। इनके रोज़ घर आने का ये फ़ायदा हुआ कि वो ऑफिस में एक दूसरे से बात ना करते। जो कुछ असमत ने पूछना होता या खतूत के जवाब लिखवाने होते, घर पे मदद ले लिया करती। इस तरह इनके दीगर कोलीग्स की ज़ुबानें खुद ब खुद बंद होने लगीं और कयूम साहब ने भी असमत की नेक नामी पे आँच न आने देने की वजह से इस सीट से तबादला करवा दिया। मेरी शादी हो गई और मैं कनाडा चली गई। मुलाजमत को खैराबाद कहना पड़ा। 5 बरस बाद जब वतन वापस आई तो असमत से मिलना हुआ। इसने बताया कि इससे भी बाद में कयूम साहब से लगाव हो गया और फिर वालिदैन की इजाज़त से इसने उनसे शादी कर ली। मैंने ऑफिसरशिप के लिए इम्तिहान पास कर लिया, जिसमें कयूम साहब ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं क्लर्क से पहली क्लास 2 फिर क्लास 1 ऑफिसर बन गई। बैंक से लोन मिला तो घर खरीद लिया, जिनकी एक साथ तनख्वाह से अदा करती हूँ। वालिद वफात पा गए। कयूम साहब रोज़ आते मगर दिन में, रात को कभी वो हमारे घर न ठहरते थे। मैंने वालिदा और बहनों को एक अलग फ्लैट ले दिया, वहाँ शिफ्ट हो गए वो। इस तरह मेरा भी एक अलग घर बन गया, जिसमें मैं अपनी मेहनत की कमाई से जिसे मैंने सजाया। जब तक कयूम साहब जवान रहे वो असमत के पास आते रहे, क्योंकि वो इनकी मनकूहा थी। लेकिन जब से बूढ़े हुए अब नहीं आते, बस फ़ोन पे राब्ता रखते हैं। असमत भी इस पे राज़ी है, कहती है नहीं आ सकते कोई बात नहीं, फ़ोन तो करते रहते हैं। इनकी आवाज़ मेरे लिए बड़ा सहारा है। वो मेरी पुश्त पर ना होते तो इन दिनों में किसी ऐसी कमज़ोर लड़की होती कि नौकरी छोड़ देती और मेरा कुछ न रहता, तो मेरे घर का भी शराज़ा बिखर जाता। उन्होंने कदम कदम पे मेरी रहनुमाई की है। मुझे ही नहीं, मेरी बहनों को भी मुलाजमतें दिलवाई, इनके रिश्ते तलाश करने में मददगार रहे। इनकी शादियों में भला इनके सहारे के बगैर अकेली कैसे कर सकती थी। इस तरह सारी बहनें अपने घरों की हो गई। अब असमत अपनी बूढ़ी माँ के पास रहती है और कहती है कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वो मुझसे दूर रहकर भी मेरे करीब है। सुबह शाम मेरी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। शौहर हो तो ऐसा।